ہم نے پاکستان کو وہاں لے جانا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. بہت لائل، بہت وفادار ہمارے جوان ہیں. جس ڈائریکشن میں آپ جائیں گے پاکستان اس ڈائریکشن میں چلا جائے گا. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت سے ہی وابستہ ہے. پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا. پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے. ہم نے ملک کو وہاں لے کر جانا ہے جہاں اس کا حق ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سندھ کے نوجوانوں سے گفتگو. خراج تحسین بھی پیش کیا. کہا سندھ کے لوگ محنتی ہیں. ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. پاک فوج کی بھی تعریف کی. کہا فوج میں میرٹ کا سسٹم ہے. میرٹ سے ہی ملک ترقی کرتا ہے. پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے میرٹ کو یقینی بنانا ہوگا. مکمل، لوگ گھروں میں قید، دکانیں اور کاروبار بدستور بند، لوگ بھوک و پیاس سے نڈھال. قابض فوج چادر اور چار دیواری بھی پامال کرنے لگی. ڈرون سے کشمیریوں کو نشانہ بنایا. Will you help us? We're in a 30-day curfew. Kashmiris are dying, don't have food, don't have milk, don't have water. Kids cannot go to school. Will you help us or not? ہماری مدد کیجیے، کشمیری مر رہے ہیں. مشال ملک کی بیٹی کی اپیل. 30 دن سے کرفیو ہے، خوراک ہے نہ دوائیں. گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف لندن میں احتجاج. ہزاروں لوگوں کا بھارت کے خلاف کشمیر آزادی مارچ. مظاہرین کی مودی کے خلاف نعرے بازی. سعودی وزیر مملکت خارجہ عادل الجبیر کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے. وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات ہوگی. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بھی کل پاکستان پہنچیں گے. شہر اقتدار عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. پاک افغان چین سہ فریقی اجلاس ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہوگا. پاک چین اقتصادی راہداری کی افغانستان تک توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے. اجلاس میں افغان امن و مفاہمتی عمل پر مشاورت کی جائے گی. بھارتی بحریہ کا حاضر سروس کمانڈر اور جاسوس ہوں. کلبھوشن نے ڈپٹی ہائی کمشنر کو صاف کہہ دیا. پاکستان میں را کے لیے کام کرنے کا بھی اعتراف کیا. گزشتہ روز حوصلہ رسائی کی تفصیل سامنے آ گئی. پاکستان نے 2 گھنٹے تک بات چیت کی اجازت دی تھی. کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کل ہوں گے. واہگہ اٹاری بارڈر پر بیٹھک لگے گی. راہداری کا حتمی مسودہ طے کیا جائے گا. پاکستانی وفد کی قیادت ڈاکٹر فیصل کریں گے. کراچی میں بارش کے بعد مسلسل مشکلات. سڑکوں پر جمع پانی اور شہر قائد کے موجودہ حالات انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. کورنگی کازوے پر ندی کا پانی. سڑک پر تیز بہاؤ. کازوے روڈ دوسرے روز بھی بند. کورنگی انڈسٹریل ایریا آنے اور جانے والے شہریوں کو مشکلات. کلین کراچی مہم پر تنقید. وفاقی وزیر علی زیدی جلال میں آ گئے. کہتے ہیں ہم نے کچرا صاف کیا مگر مخالفین گندگی پھیلاتے ہیں. کچھ کہتا ہوں تو کہا جاتا ہے سیاست کی جا رہی ہے. خاموش رہوں تو کہتے ہیں ناکام ہو گئے. سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ پولیس تشدد سے جاں بحق صلاح الدین آبائی علاقے کاموں کی گورانی میں سپرد خاک. بیٹا بچپن سے ذہنی معذور تھا. بازو پر اس کا نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا. والد افضال کا بیان. کہا پولیس نے ذہنی معذور بیٹے کو چور سمجھ کر قتل کر دیا. گجرانوالہ کی سیشن کورٹ کے سامنے فائرنگ. آج نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی. ڈولفن فورس اور پولیس اہلکار تماشائی بنے رہے. فائرنگ کے بعد ملزم نے خود ہی گرفتاری دے دی. شاہینوں کو اڑان کون سکھائے گا؟ قومی ٹیم کے کوچز کا اعلان کل ہوگا. ہیڈ کوچ کے لیے مصباح الحق مضبوط امیدوار. بولنگ کوچ کے لیے وقار یونس فیورٹ.
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा है कि हमें पाकिस्तान को वहां ले जाना है जहां इसका हक है। नौजवानों ने बतौर लीडर पाकिस्तान की सिमत का तयन करना है। उन्होंने कहा कि हमारी माएँ ऐसी हैं जो मुल्क पर जान निछावर करने वाले बच्चे पैदा करती हैं और हमारे जवान ऐसे हैं कि पसीना मांगे तो खून देते हैं। पाकिस्तान के नौजवान हैं कौम का फखर और पाकिस्तान की शान। सिपा सलार का नौजवानों को पैगाम। सिंध के नौजवान नुमाइंदा वफ्द का दौरा ISPR। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब में कहा, सिंध पाकिस्तान की जान है, मुल्क बनाने में सिंध का अहम किरदार है। उन्होंने कहा, मुल्क को वहाँ ले जाना है जहाँ इस मुल्क का हक है। अगर हम अपने आप को ईमानदारी से नहीं देखेंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। आप लोग जो हैं, नई जनरेशन जो है, ये आप लोग उम्मीद हैं, हमने पाकिस्तान को वहाँ ले जाना है जो उसका हक बनता है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। दुनिया में जो चेंजेस लाते हैं ना, इनकलाब लाते हैं, वो यूथ लाती है। जनरल बाजवा ने नौजवानों पर यह वाज़ेह किया कि वो कौम का मुस्तकबिल और मुल्क की शान है। ये सोचना पड़ेगा हम सबको कि हमने पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो मेरिट की बेस पे जा सकते हैं, कि मेहनत का कोई नियम बदल नहीं है। जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चला जाएगा। कामयाब आदमी जो पानी के रुख के उस पर रुकावटें बड़ी होती। सिपा सलार ने मुल्क की माओ और नौजवानों पर फख्र किया। और मुझे हमेशा लोग कहते हैं, मैं भी अमेरिका भी गया, कि भी आपकी फौज ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो आपने ये कैसे कामयाबी अचीव कर ली कि आपने दहशतगर्दों को उठा के मुल्क से बाहर फेंक दिया। तो मैं उनको हमेशा दो वजह कहता हूँ। मैं एक तो हमारी माएँ ऐसी हैं जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो मुल्क के ऊपर जान निछावर करने को तैयार होते हैं, और हमारे जवान ऐसे हैं जो कभी मैं उनसे पसीना मांगता हूँ तो वो खून देते हैं। और हमारे फौज के अंदर भी एक हमारा असूल है, हम कभी जवान को नहीं कहते कि एडवांस, हम कहते हैं फॉलो मी। हमारा लीडर ऑफिसर हमेशा सबसे आगे होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कोई मजहब दूसरों का हक मारने की इजाजत नहीं देता और फौजी कुव्वत से ज्यादा ताकतवर इखलाकी कुव्वत होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है और नौजवानों के हाथों में है। आर्मी चीफ के खिताब पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राना मुबशिर साहब, आपने भी आर्मी चीफ का खिताब सुना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को गाइडलाइन हमने दे दी है और नौजवानों ने ही मुल्क को चलाना है। नौजवानों ने बतौर लीडर पाकिस्तान के सिमत का तयन करना है। क्या कहेंगे आप आर्मी चीफ के इस खिताब पर? आई वुड से कि बड़ा अच्छा जेस्चर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और जिस तरीके से कराची और स्पेशली सिंध के लोग जो है, नौजवान लोग जो है, वो डिसरे हैं, उनको एक ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा था, और अभी उनको एक ऑब्जेक्टिव, उनको एक उम्मीद नजर आ रही है और वो आस नजर आ रही है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको एक डायरेक्शन दे दी है। डायरेक्शन से मुराद ये है कि देखिए, मेरिट जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, और आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी काफी अरसा रहा कराची में, हमें वहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज नहीं नजर आती। और खास तौर पे नौजवान जो है, चाहे वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रीज लेते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी बच्चियां हैं, सुलझे हुए बच्चे हैं, तमीजदार बच्चे बच्चियां हैं, और उनको डिग्रीज अच्छी मिल जाती हैं, पढ़े लिखे हैं, और आई वुड से कि पंजाब से ज्यादा मेहनती हैं, पंजाब के बच्चे बच्चियों से ज्यादा मेहनती हैं। लेकिन उनको डायरेक्शन इसलिए नहीं मिलती थी कि उनको हर चीज में पता ये चलता था कि जनाब अगर वो डिजर्व भी करते हैं तो उनको पैसा दे के नौकरी लेनी पड़ेगी। पैसा दे के नौकरी लेने वाला काम अब आप देखेंगे कि ग्रेजुअली, इमीडिएटली नहीं होगा, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लो प्रोसेस है, इतनी जल्द भी नहीं होगा, मैं गलत उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे कई जगहों पे आपको मेरिट नजर आना शुरू हो जाएगा, और मेरिट पे सिंध के लोग जो है, सिंध के अवाम जो है, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो मैं बात कर रहा हूँ जॉब्स की, एंटरप्रेन्योर्स में भी आपको देखें, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होगी उसमें भी आपको रिलीफ नजर आना शुरू हो जाएगा। बट आई मस्ट रिपीट माई सेल्फ अगेन, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, और ये इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होगा, और उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो आइंदा कुछ महीनों में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, नौजवान जो है, they can like turn around things,
एंड दे विल टर्न अराउंड थिंग्स। और स्पेशली बहुत यहाँ पे टैलेंट है, मौजूद है सिंध के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर बहुत टैलेंट है। और वो जितने नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ना कोई आपको यहाँ पे नई रे ऑफ होप उनके लिए भी नजर आएगी। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोगों को भी एक यहाँ पे सेट पैटर्न बन गया है कि कोई भी काम करवाना है आपने तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, चाहे किसी भी महकमे में चले जाए आप, वो भी आपको ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें नजर आनी शुरू होंगी कि वहां पे भी आपको रिलीफ नजर आना शुरू होगा। मैं दोबारा तीसरी मरतबा रिपीट करूंगा, ओवरनाइट नहीं होंगी ये चीजें, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है कुछ ही माह में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे और आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने। गरीदा फारूकी, आर्मी चीफ ने कहा है कि सिंध पाकिस्तान की जान है, मुल्क बनाने में सिंध का अहम किरदार है, मुल्क को वहां लेकर जाना है जहां उसका हक है। क्या कहेंगे आप इस पे? हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। जैसे हमारा राब्ता होगा मजीद आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको हम बताएं कि आर्मी चीफ ने नौजवान नस्ल को गाइडलाइंस दे दी हैं। कहा है कि नौजवानों ने ही मुल्क को चलाना है, नौजवानों ने बतौर लीडर पाकिस्तान की सिमत का तयन करना है। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज सिंध के नौजवानों से खिताब किया है और उनका मुराद बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को वहाँ ले जाना है जहाँ उसका हक है। बिल्कुल, गरीदा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। गरीदा फारूकी, जिस तरीके से आर्मी चीफ ने कहा है कि सिंध पाकिस्तान की जान है, मुल्क बनाने में सिंध का अहम किरदार है, मुल्क को वहाँ लेकर जाना है जहाँ इसका हक है, क्या कहेंगी आप इस पे? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौजवानों से मुलाकात करते रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही अरसा पहले उन्होंने फाटा के नौजवानों से, फाटा के तालिब इल्मों से मुलाकात की और उनसे भी इजहार ख्याल किया, उनसे भी ख्यालात का तबादला किया। अब उन्होंने सिंध के नौजवानों से मुलाकात की है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद टॉप ममालिक में से एक है कि जहाँ पे यूथ की आबादी, नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है और दुनिया भर में ऐसे ममालिक को तरक्की के लिए ज़रख़ेज़ समझा जाता है जहाँ पे नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा हो। खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पे नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि नौजवानों की इस आबादी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता, सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। तो इस नौजवान तबके की हर एक से मुलाकात होनी चाहिए, जिसमें जाहिर है आर्मी चीफ का भी एक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक अहम किरदार है और जाहिर है अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर से जो आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह कश्मीर का मामला है, जिस तरह पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस हैं, तो इसमें नौजवानों को ऑन बोर्ड लेना बहुत अहम है। और ये आर्मी चीफ ने एक अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने नौजवानों से मुलाकात का आगाज किया है। इससे पहले भी वो करते रहे हैं और जहां तक मुझे याद है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, शायद उन्होंने बलूचिस्तान के नौजवानों से भी मुलाकात की है। तो इस वक्त जितने भी छोटे सूबे हैं या जो पसमानदा इलाके हैं, उनके नौजवानों से आर्मी चीफ मुलाकात कर रहे हैं। ना सिर्फ उन नौजवानों के एक्सपोजर में इजाफा होता है, ना सिर्फ उनके ख्यालात में वुसअत आती है, बल्कि जब वो मिलते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहे हैं या आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, जब वो इस तरह की बड़ी क़यादत से मुलाकात करते हैं तो उन्हें अपनी समझ पता चलती है कि उन्होंने। ठीक है, गरीदा फारूकी इस हवाले से अपना तज्जिया दे रही थी। आर्मी चीफ ने नौजवान नस्ल को गाइडलाइंस दे दी हैं और कहा है कि नौजवानों ने ही मुल्क को चलाना है, नौजवानों ने बतौर लीडर पाकिस्तान की सिमत का तयन करना है। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को वहाँ लेकर जाना है जहाँ उसका हक है। इसी पर अपना तज्जिया दे रहे थे राना मुबशिर और गरीदा फारूकी। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद कोरंगी कॉजवे पर एक बार फिर नदी का पानी आ गया। कॉजवे रोड दूसरे रोज भी बंद है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आने और जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शकील नकवी से। मलिन नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। कोरंगी कॉजवे आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस कोरंगी जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से अपने घरों में महसूर होके रह गए। हमारे कारोबार शहर में, शहर हम जा नहीं सक रहे। इधर कोई तवज्जो है ही नहीं ना,
जब आप लोगों को, हुकूमती अरकान को सबको मालूमात है कि ये रास्ता गुजरगाह है एक, तो यहाँ पे भी मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए या नहीं। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची को यहाँ पे आके इस चीज़ का जायजा लेना चाहिए कि आवाम किस हाल में किस तरह परेशान है।